ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ यूपी ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ SIT ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਭਾਵ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ पूरी घटना वापरी सी। तमाम कड़ियां SIT एक एक कर जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इन ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। टुकड़े अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो साक्ष्य और सबूत हैं जिनको लेकर जिनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची है। ये वो साक्ष्य सबूत हैं इसीलिए मना किया जा रहा है कि उनको टच ना करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अनुपम ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ DGP UP ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਭਾਵ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ SIT ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ UP ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਤਿਕੋਣੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ त्यों उसी तरह बरकरार। साढ़े ग्राउंड जीरो तो राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, तो रिक्रिएशन किया जा रहा है, आप मौके वारदात पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अजीत, तो अभी क्या ताज़ा हालात क्या है और क्या लग रहा है कि किस प्रकार से पूरी जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को इसी स्थल पर सबसे पहले हिंसा हुई थी जिसमें 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये वही घटना स्थल है जहां पर सबसे पहले जो थार है जो किसानों को कुचलते हुए आगे आ रही थी वो यहाँ पर पलटी थी और इसके बाद इसमें जो सवार लोग थे उनको भी बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ द्वारा उनको पीटा गया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसे में अब SIT की टीम DIG उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुंची है। उनके साथ IPS सुनील कुमार सिंह जो SIT के 9 सदस्यीय मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर को यहाँ पर लाए हैं। आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं उसमें उन आरोपियों को बिठाया गया है। इससे पहले एक एक करके आरोपियों को घटनास्थल पर उतारा गया है और ये जानने और समझने की कोशिश की गई है कि आखिर जब ये घटना हुई तो वो उस वक्त कहाँ थे। और इस दौरान जो बात सामने आ रही थी कि फायरिंग की गई है और गाड़ियों में जो कारतूस मिले थी उस बात की भी पुष्टि हुई है और खुद अंकित दास ने SIT की पूछताछ में ये बात स्वीकार की है कि जो वो फायरिंग हुई है वो उसी के गनर द्वारा की गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि किसानों के बीच वो गिर गया है। ऐसे में उसने बचाव में फायरिंग की थी, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक जो अंकित दास गुप्ता है उसको उतारा गया, फिर
फिर लतीफ को उतारा गया, फिर उसके ड्राइवर शेखर को उतारा गया, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस घटनास्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साबित होता है कि अब तक एसआईटी के पास ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। और जो कि लगातार उसके वकील और वो खुद शुरुआती दिनों से कहता रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर एसआईटी ने ये कहा था कि उसके पास कई ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि हुई है, लेकिन फिलहाल जो अब तक की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का काम हुआ है, जो पूछताछ हुई है, जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें आशीष मिश्रा को एक बार भी घटनास्थल पर नहीं उतारा गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद इस स्थल से आगे ले जाकर आशीष मिश्रा को उस दंगल स्थल पर ले जाया जाएगा जहां पर उस दिन दंगल हो रहा था, और फिर उस राइस मिल पर जहां पर यह बताया जा रहा है कि दंगल के बाद वो राइस मिल पहुंचा था, तो वहां पर भी पहुंचकर ये तस्दीक की जाएगी और तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जिनके आधार पर यह साबित किया जा सके कि आखिर 3 अक्टूबर की दोपहर जो घटना हुई उसका असल जिम्मेदार कौन था। देखो राजीव, एक बात और समझ आते हैं और जानना चाहते हैं कि कितनी देर होगी इस पूरी जांच को चलते हुए। लखीमपुर में जो रिक्रिएशन क्राइम सीन क्रिएट किया जा रहा है, कितनी देर होगी इंक्वायरी चलते हुए, और क्या लग रहा है कि अभी कितनी देर और इनको यहां रखा जाएगा? उसके आगे की जो रणनीति है और पुलिस की एसआईटी की कार्रवाई वो कैसी रहेगी? इनको आज यहीं रखा जाएगा या वापिस ले जाया जाएगा? देखिए, अब से करीब 1 घंटे पहले एसआईटी की टीम इन आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है, और जब कोई बड़ा मामला होता है और एसआईटी को डाउट होता है या पुलिस टीम को डाउट होता है तो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है। और यही कारण है कि एसआईटी की टीम, आप देख सकते हैं कि जो अफसर हैं वो घटनास्थल के बाद अब उनका काफिला जो है आगे की ओर बढ़ चुका है, और अब ये जो अफसर हैं ये उस दंगल स्थल पर जा रहे हैं जहां पर आशीष मिश्रा खुद के मौजूद होने का दावा कर रहा था। ये जो टीम है आशीष मिश्रा के घर पर भी जा सकती है और उसके बाद साथ ही साथ राइस मिल पर भी जा सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी के अधिकारियों का काफिला है वो आगे तो बढ़ गया है, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस स्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साफ साबित होता है कि आशीष मिश्रा की घटना स्थल पर मौजूदगी के अब तक कोई पुख्ता प्रमाण एसआईटी के हाथ नहीं लगे हैं। और जो दावा, जो बयान आशीष मिश्रा अब तक देता आया है, उसी बयान के आधार पर अब एसआईटी टीम दंगल के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही जो उसके गांव में स्थित था। उसके बाद फिर एसआईटी टीम ये राइस मिल की तरफ जाएगी और वहां ये जानने और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर जो आशीष मिश्रा था क्या वो वहां मौजूद था या फिर वो झूठ बोल रहा है। इस पूरी जांच के बाद ये करीब 2 से 3 घंटे तक का जांच चलेगी। उसके बाद फिर जब वापस जाएगी तो एसआईटी टीम एक बार फिर से डिस्कशन करेगी और जो अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और सबूत मिले हैं उनको समाप्त करके उनके आधार पर यह कोशिश करेगी कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटना का असल जिम्मेदार कौन था और कौन कौन लोग घटना स्थल के ऊपर मौजूद थे और उनकी क्या भूमिका थी। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जो एसआईटी गठित की गई है उसके सभी मेंबर इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर 3 अक्टूबर को इसी स्थल पर 8 लोगों की मौत हुई थी। जी शुक्रिया फिलहाल के लिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी देने के लिए। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਐਸਆਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ आशीष मिश्रा ने जिक्र किया कि उत्थे मौजूद है। उस तो बाद की अपडेट होगी लगातार तुहानूं सब तो पहला असीं दिखावांगे।